चीज पढ़ा रहे हो ना, जो हमने वो किया था लास्ट क्लास में, वो कंटिन्यूशन नहीं है ना? नहीं नहीं वो नहीं है, तुम्हारा नया है तो उसके बाद तुम्हारा कंटिन्यूशन करेंगे, मतलब वो रिपीट होगा तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद वील कंटिन्यू, राइट? ओके सर। चलो ठीक है। प्योर, नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज impure and one is pure. In pure we have elements and we have compounds. Getting it? Books कब तक? 1 second. What you have written? Books कब तक खरीदनी है? अरे अरे टाइम है, अभी टाइम है, रुक जाओ. Still the time is there. Just wait. Okay. Now shall I rub this part? Yes. Yes, sir. Very Yes. good. Now listen. Now after rubbing this part, just tell me the chemical Sir, 1 minute. composition, right? In books, I guess I will सर आप send चैट soft बॉक्स copy में also, हेलो लिख right? सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा चैट बॉक्स नहीं काम कर रहा, कुछ Okay. प्रॉब्लम आ गई है। Okay. Hi. Done. लिख दिया. So will we get the PDF of this chapter? Yeah, you will get PDF of this chapter. I'll send you 2 PDFs, right? सर मतलब जो झील का जो मटेरियल है वो सब भी सेंड हो जाएगा ना? हाँ सब वो लेना भी हो जाएगा and I'll send you my personal material also, in which you can solve the from which you can solve the extra problems, right? हाँ, तो जो अभी जैसा आपने बोला था टेस्ट होएगा, मतलब हम लोग को कौन सा वाला फॉलो करना है? Listen, there is no test for the new student who just came right now. जो Not टेस्ट right. होगा वो अभी उनके लिए होगा जो 1 महीने पहले आए थे हमारे साथ, राइट? ओके ओके हाँ तो अभी इतना टेंशन मत लो उसके बारे में. ओके सर. You will have one test on atomic structure also. We'll check it out. The schedule will be sent to you. Don't worry. Yeah. देखो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरे मार्क्स चाहिए. So the test for April student, and yeah, April student, right? चलो अभी इसको हटा, बहुत हो गया. Now we'll start with classification stuff. ठीक है? Now in chemical classification, sir, वो बैच 2 you were teaching law. हाँ, I'll start that whole thing again. दोनों का होगा I guess. Then I'll अच्छी केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, मैथ्स का होगा, इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिल जाएगी, टेंशन मत लो, है ना? It's better now we'll concentrate in this class because क्लास सिर्फ 4 बजे तक है, ठीक है? शुरू करें? Okay, listen. Now chemical classification के अंदर, like we have a chemical classification. Now I want to know in the pure thing, like what is element? What do you mean by element? What is the definition of element? Sir, a substance made up of similar atoms. Same type of atom. Matter which is made up of same atom. Examples: oxygen, ozone, your सोडियम सॉलिड, जिसको सोडियम मेटल कहते हैं, सिर्फ सोडियम एटम का बना होता है, एक्सेट्रा. ग्रेफाइट विच इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, कार्बन एटम्स. डायमंड, हाउ कैन यू इग्नोर दैट, राइट? सो दीज आर नथिंग बट द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ अ मैटर. सो जो भी मैटर है, ठीक है, जो सिर्फ सेम एटम से मिलके बनता है, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं. अंडरस्टैंड? कंपाउंड क्या होता है?
कंपाउंड क्या होता है? Sir, matter made up of a mixture of elements in a fixed proportion. Okay. When two or more atoms combine in a fixed proportion by its number, it forms a particular compound. For example, I have calcium carbonate, CaCO3. Now, calcium carbonate एक एटम कैल्शियम से, एक एटम कार्बन से और 3 एटम ऑक्सीजन से मिलकर बना है. So it's a compound. I can have CO2. एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2 बनाता है. I can have carbon monoxide. एक कार्बन एक ऑक्सीजन. I can have N2O5. 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन आटम. So they are nothing but compound. Whenever 2 nitrogen atom and 5 oxygen atom are combined together in the very same ratio, I'll be getting dinitrogen pentoxide every time. You understood that? बात समझ में आई? कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो सेम एटम से बनता है वो एलिमेंट, जो अलग अलग एटम से मिलकर बनता है फिक्स रेशियो में, उसे कंपाउंड कहते हैं. राइट? ओके सर, अब दिस यस सर 1 मिनट. हाँ बेटा, टेक 1 मिनट. What is N2O5? With dinitrogen pentoxide. N2O5 को डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कहते हैं. डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, N2O5. When all you teach quantum model, but after mole concept, when the before periodic property, we'll start. After mole concept. Yeah. Done? Good. सर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया क्या? कौन से बैच में? जो प्रीवियस बैच था नॉन इंटीग्रेटेड का, मतलब वाला ना, अप्रैल हाँ, वाला अप्रैल. ना. क्वांटम हाँ. नहीं हुआ है, बाकी सब हो गया. और क्या बचा है मुझे बताओ? क्वांटम मॉडल बचा है ना, श्रोडिंगर अंकल वाला. ओके सर. नहीं, क्वांटम ऑब्वियसली नहीं आएगा. क्वांटम मॉडल मोल कॉन्सेप्ट के बाद शुरू करेंगे. वेट. ठीक है. ओके. तो नाउ व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? पहले तो मिक्सचर बताओ, 2 टाइप के. मिक्सचर का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 or more matters combine together or mix together in random ratios results in the formation of mixture. राइट. अच्छा एक बात बताओ, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं. कौन कौन से? Sir, homogeneous and heterogeneous. या बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो तुम. होमोजीनियस एंड
हेट्रोजीनियस। फर्क क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क क्या है? सर होमोजीनस में दोनों अच्छे से मिक्सड होंगे, इक्वली मिक्सड रहेंगे, और हेट्रोजीनस में मिक्सचर अच्छे से नहीं रहेगा, जैसे कंसंट्रेशन हर जगह पर डिफरेंट रहेगा। Sir, uniformly uniform अच्छा concentration. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्सचर होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते, राइट? हाँ सर। है ना? अच्छा एक बात बताओ, कोलॉइडल सॉल्यूशन Yes, पढ़ा है sir. नाइन्थ में कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ा है? यस सर। यस सर। अच्छा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है कि होमोजीनियस होता है? Heterogeneous. हेट्रोजेनस। अच्छा हेट्रोजीनियस क्यों होता है? Because of the size of the particle. हाँ वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा एक बात हो, वो एक्सपेरिमेंट किया है क्या? जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर वाटर लेते हो, यू पास लेजर लाइट, when you Yeah. pass laser light you cannot see light inside water, you know that Yes. the pathway of light is not visible inside water, but जब हाँ. तुम एक बूंद टी या फिर वन ड्रॉप ऑफ मिल्क उसके अंदर डालते हो and then you pass this thing laser light, you can see the path of light inside water. Why? Because Tyndall effect. Tyndall effect होता है। I'm so proud of you. Now the milk in water, that one drop of milk in water will make milk solution or this solution homogeneous or heterogeneous one? होमोजीनस Homogeneous. तो तुम्हारे डेफिनेशन से जाऊं तो यार वो एक जो ड्रॉप होगा दूध का, राइट, मिल्क पार्टिकल का, वो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। चाय पीते हो? नहीं। यस सर। अच्छा बॉर्नविटा पीते हो? हाँ सर। यस सर। तो बॉर्नविटा के अंदर जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह होता है, यूनिफॉर्म होता है कि अलग अलग होता है? यूनिफॉर्म होता है। सर अच्छे से हाँ, मिक्स तो करो मैं तो उसको यूनिफॉर्म होगा। होमोजीनियस बोलूं कि हेट्रोजीनियस बोलूं? हेट्रोजीनियस। तुमने ना एक डेफिनेशन बोली मेरे को, सुन तो लो। यू पीपल हैव टोल्ड मी दैट होमोजीनियस सॉल्यूशन जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मैंने मान लिया। मैंने फिर एग्जांपल दिया कि यार एक ड्रॉप मिल्क का ले लिया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, वो डिसॉल्व हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो मैं उस सॉल्यूशन को होमोजीनियस बोलूंगा कि हेट्रोजीनियस बोलूंगा? होमोजेनस। हेट्रोजीनियस। तो फिर तुम्हारी डेफिनेशन तो गलत होगी ना अगर मैं हेट्रोजीनियस बोलूं तो। गलत हुई कि नहीं हुई? हाँ। हाँ सर। अरे तो यूनिफॉर्म तो होता है ना AU003। अगर यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है तभी तो तुमने बोला होमोजीनियस होगा। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनना चाहिए तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से। एक्चुअली तो डेफिनेशन गलत है जो मैं बताइए। होमोजीनियस का मतलब होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना सॉल्यूट का वो यूनिफॉर्म हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेट्रोजीनियस के अंदर यूनिफॉर्म हो भी सकती है, यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती है। होमोजीनियस में विल बी यूनिफॉर्म एवरी टाइम। बट द थिंग इज जो करेक्ट डेफिनेशन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का, व्हेन अ बाउंड्री बिटवीन solute and solvent cannot be observed either by naked eye or by light microscope. मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट तुमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तुम फर्क ना पता कर पाओ, उसे कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। गेटिंग अ पॉइंट? मतलब क्या हुआ इस चीज का कि मैंने सपोज करो NaCl डिसॉल्व किया वाटर के अंदर,
तो तुम आंखों से उस पानी को देख रहे तुमको लग रहा है कि अच्छा ये Na+ पार्टिकल जा रहा है, सील माइनस जा रहा है, ये Na+ जा रहा है, सील माइनस जा रहा है। कभी कुछ ऐसा दिखा है क्या आंखों से? नो No, सर। sir. No, नहीं ना? sir. उसकी एक ड्रॉप ले लो, उसकी एक ड्रॉप ले लो, ठीक है। उस एक ड्रॉप को स्लाइड के अंदर डाल के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तभी भी तुमको Na+ और Cl- नहीं दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yeah. हाँ, Sir. तो उस सॉल्यूशन को ना, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्री ना दिखे, उसे होमोजीनियस कहते हैं। अंडरस्टूड? कॉन्सेंट्रेशन इसमें यूनिफॉर्म sir. रहती है, गेटिंग इट? वो रहेगा। heterogeneous solution में there exists a boundary between solute and solvent. सस्पेंशन के केस के अंदर like sand and water, सस्पेंशन के केस के अंदर you can see the boundary by naked eye, ठीक है। और वो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा? मिल्क इन वाटर। व्हाट इज दैट? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में यू हैव टू यूज विच माइक्रोस्कोप? आंखों से नहीं दिखेगा कि अच्छा जा रहा है, बट यार यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप। गेटिंग अ पॉइंट? Understood? Yeah, exactly. There is compulsory that they should be. No. See, the thing is, heterogeneous solution मतलब colloidal solution. Colloidal solution का भी तो concentration uniform होता है ना बहुत सारे cases के अंदर, तो फिर भी तो हम उसको heterogeneous ही बोलते हैं। heterogeneous और homogeneous के सिर्फ ये दो क्लासिफिकेशन है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म होमोजीनियस में हमेशा होगा, हेट्रोजीनियस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? फॉर एग्जांपल मिल्क इन वाटर, वो तो होमोजीनियस मतलब वो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना हर जगह, तो उसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हेट्रोजीनियस ही, बट कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिफॉर्म है ना। देखो डाउट ये था, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर तो फिर हेट्रोजीनियस कॉन्सेंट्रेशन को, हेट्रोजीनियस मतलब फिर यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा होमोजीनियस बोलेंगे ना। मैंने कहा नहीं, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हाँ, जब सॉल्यूशन होमोजीनियस है तो हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जब सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good. So say that Yes, this. sir. Yes. अच्छा, दूसरी चीज, Yes, sir. मिक्सचर के अंदर द मैटर ऑफ द मिक्सचर will not react chemically with each other. नहीं, ये जरूरी नहीं है, छोड़ो। डन। अच्छा एक बात बताओ, एयर जो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, विल इट बी होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस? Sir, homogeneous. सर होमोजेनियस। Why? Because Won't be able to see the boundary. वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड प्लैटिनम है और उसको ऑक्सीजन गैस के साथ एक डब्बे में बंद कर दिया, तो एक सॉलिड है और एक गैस है, तो मुझे बताओ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? Sir, heterogeneous. बिकॉज प्लैटिनम और ऑक्सीजन के बीच में एक बाउंड्री होगी, प्लैटिनम दिखता है तुमको, ऑक्सीजन आसपास मूव कर रहा होगा, एग्री? तो देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री, राइट? Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, वाटर एंड ऑयल, Sir, Heterogeneous. हेट्रोजीनियस बाउंड्री दिखेगी, राइट? अच्छा, वाटर एंड अल्कोहल? Homogeneous. Homogeneous. rub this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो, great. हाँ, okay, great. Now just write down some basic laws of
some basic laws of chemical combination. ठीक है, तो ये तो भैया मैटर का क्लासिफिकेशन था. तो आज के बाद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कोई इश्यू तो क्रिएट नहीं करोगे ना? Nice, sir. Nice. नाइस नाइस. Okay, now listen. Some basic laws of chemical composition, chemical combination. Some basic laws of chemical combination. The very first law of chemical combination is law of Conservation of mass. conservation of mass. Mass, right? So what does it say? It says that during a chemical reaction, mass of reacted will be always equal to the mass of product produced. It simply says that mass will always remain conserved. Unchanged. Yeah, now listen. एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? खुद सोचो ना. सपोज करो मैंने नाइट्रोजन गैस लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है. ओके फाइन, 5 ऑक्सीजन एटम लिए, 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए, दोनों को ना रिएक्ट करवाया. सपोज N2O5 बना. एक बात बताओ, जब ये प्रोडक्ट बना तो इसमें से नाइट्रोजन कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहीं से आया. Yes. हाँ, और इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से आया. Yes. तो ये इसका मास आपस में कंबाइन करके ये बना रहा है. तो इसका जो मास होगा ऑब्वियसली जब सब कुछ जुड़ गया तो इसका जो मास होगा वो इसके इक्वल होगा. कॉमन सेंस से जब यहाँ से ये चीज आ रही है, यहाँ से ये चीज आ रही है, तो इसका मास यहाँ चला गया, इसका मास यहाँ चला गया, तो मास तो कंजर्व ही होगा ना. Yes, sir. मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि भैया तू जिम में जाके मास लूज करके बात कर. अरे भाई, अगर मास लूज होता तो उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलता था, रेडियो एक्टिव रिएक्शन बोलता. रेडियो एक्टिव रिएक्शन. एक्चुअली बिकॉज रेडियो एक्टिव रिएक्शन के अंदर मास लॉस होता है. और मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. आई नेवर टोल्ड अबाउट रेडियो एक्टिव रिएक्शन, राइट? इसको लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14. हाँ, तो कितने नाइट्रोजन है? 2. तो कितना मास होगा? 28. वेरी गुड. 28 ग्राम, राइट? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. 32. एक ऑक्सीजन 16 होता है, इंटू 2 करोगे 32. 32 को 5/2 करोगे तो 80. कितना आएगा? 80. वेरी गुड, 80 ग्राम. अच्छा क्या बताओ, जब ये बना तो नाइट्रोजन कितना था? 28. वेरी गुड. प्लस ऑक्सीजन कितना था? 80.
80 प्लस 28 कितना हुआ? 108. 108 हुआ ना। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि 28 प्लस 80 मिलके क्या बनाएगा 108। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? Yes, sir. Very good. So proud of you. Correctly written. So share up this now. Say it. What's it? Yes, sir. Now understand one thing. चलो देखते हैं कैसा कैसा करते हो तुम लोग। Sir, then radioactive reaction is different from chemical reaction. Obviously बेटा, radioactive reaction के अंदर न्यूक्लियस दो एटम्स के आपस में फ्यूज कर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो न्यूक्लियस अगर टूटेगा और मिलेगा तो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर नया एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, एलिमेंट जो ऑलरेडी होते हैं वो नए नए बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे, रेडियोएक्टिव रिएक्शन में एलिमेंट चेंज होंगे। बात समझ में आई? अच्छा एक काम बताओ, इसमें बताओ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया मस्त तरीके से, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, सपोज करो 200 ग्राम लिया। ठीक है, 200 ग्राम में से ना लेट्स से 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आया। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ना मैं, रुक जाओ, पहले तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड आया? 88 grams. तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो x प्लस 112 इज इक्वल टू 200। x कितना? 88 grams. वेरी गुड, 88 ग्राम। एग्री Sir. तो मैंने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, CaO को, CO2 को NaOH के अंदर डाला और मेक इट लाइक Na2O के अंदर डाला। ठीक है, तो मेरे पास Na2CO3 बना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने उसको 46 प्लस 46 प्लस 12 कितना होता है? और 46 प्लस 60 कितना होता है? कितना? 46 प्लस 60 कितना हुआ? 106। 106 ठीक है, 212। ठीक है, जो ये Na2 आया ना, ये जो Na2 आया यहाँ पे, वो 46 ग्राम ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करके आया, प्लस कुछ ऑक्सीजन था, तो ये Na2O आया। ठीक है, तो मुझे ना ये पता करना है कि कितना वजन Na2O का है और कितना वेट ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा। क्वेश्चन समझे? दोबारा समझाता हूँ। इसको हीट किया, CO2 निकला, तुमने बोला सर 88 ग्राम निकलेगा। ऐसा वेरी फाइन, 88 ग्राम निकलेगा। यही 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने Na2O के अंदर पास किया। जैसे ही पास किया तो रिएक्शन हुआ। जैसे रिएक्शन हुआ ना, तो मैंने बोला कि 212 ग्राम Na2CO3 बना। जब 212 ग्राम Na2CO3 बना CO2 के साथ रिएक्ट करके, तो मुझको ये पता करना है कि कितना वेट होगा Na2O का। और ये जो वेट आया ना Na2O का, वो 46 ग्राम सोडियम से रिएक्ट करके प्लस x ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी बनता है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए और इसका वेट चाहिए। पहले तो बताओ वेट कितना होगा? 124. 133. कितना? 124. 124. Yes, sir. 124. 124. एक मिनट, थांबा। हाँ एक मिनट, ये 92 है। ठीक है, हाँ क्या बोला? 124. 124 आया। कैसे? 212 minus 88. हाँ ठीक है, 212 माइनस 88 किया तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस किया, तो Na2O कितना आया? 212 माइनस
88 एग्रीड। तो कितना है Yes. 124 24. चलो 124 ग्राम आ गया करेक्ट। ये 124 ग्राम्स ऑफ Na2O ना इन दोनों से मिलके बनता है, तो मुझे ऑक्सीजन का वेट चाहिए 32. 32. डन। Yes, sir. इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं? Conservation of mass. एग्जैक्टली। चलो शरद आप दिस ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now, चलो बैलेंसिंग का रीजन कंजर्वेशन ऑफ मास ही है ना? या एक्चुअली यस, बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास, बट जरूरी बैलेंसिंग या करेक्ट करेक्ट डन। बैलेंसिंग का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। चलो नेक्स्ट इज Law of Law of- proportion, sir. Constant proportion. डेफिनेट। Or constant proportion. हाँ और ऑन कर लो है ना। Oh, shit. Law of definite and constant proportion, right? Now understand the law of definite or constant proportion. ठीक है, कहता क्या है ये लॉ? वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी उठाया, ठीक है, उसमें जो कार्बन का वेट होगा और ऑक्सीजन का वेट होगा ना, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसके अंदर जो वेट रेशियोज रहेंगे ना हमेशा फिक्स रहेंगे। हमेशा देखो, उससे डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर तुम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, या तो तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, या तो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, या तो तुम ग्लूकोज C6H12O6 बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंबशन करके उससे एनर्जी निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, गेटिंग इट? या तुम ऑक्सैलिक एसिड के अंदर इसमें से लाइक यू हैव टेकन ऑक्सैलिक एसिड, यू जस्ट हीट द ऑक्सैलिक एसिड एंड इट अगेन बिकम CO2 CO plus H2O, दोबारा से CO2 आता है। तो तुम कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, या तो एयर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, ठीक है। जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करोगे ना एज ए कंपाउंड, तो तुमको पता लगेगा कि एक एटम कार्बन का 2 एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। इसका मतलब क्या है? ये लॉज है ना, ये लॉज बहुत प्रिमिटिव लॉज थे। प्रिमिटिव का मतलब है तब तक मोल कॉन्सेप्ट आया नहीं था, वो हमेशा ना वेट्स के साथ खेलते थे। तब मैं नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं वेट्स की बात करूंगा। तो हमेशा याद रखना, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हर कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट? एक कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन में कितना? 32. 32. तो व्हाट इज द रेशियो? 4 से डिवाइड करना जरा। 3:8. हाँ, तो मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा ना, जो वेट रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, टू द वेट ऑफ कार्बन टू द वेट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा 3:8 रहेगा, और हमेशा एक सिंपल नंबर बियर करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, सर ये जो सिर्फ दो- मास पे डिपेंडेंट है या नंबर ऑफ एटम्स में डिपेंडेंट भी होता है? नहीं, दोबारा बोलना।
ये जो लॉ है ये सिर्फ मास पे डिपेंडेंट होता है या नंबर ऑफ मास एटम्स? मास मास मास, सिर्फ मास, क्योंकि तब तक नंबर ऑफ एटम्स का किसी ने सोचा नहीं था। ठीक है, सिर्फ मास के साथ खेलते थे ये लोग इनिशियल टाइम में। तो कहते हैं जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, तो 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ करेगा, 24 ग्राम 64 ग्राम के साथ करेगा, सो ऑन, लाइक 12 ग्राम विल रिएक्ट विद 32 ग्राम, 24 ग्राम विल रिएक्ट विद 64 ग्राम एंड सो ऑन। तो ये चीज रहेगा, अंडरस्टूड। तो हमेशा वेट के Yes. साथ खेलते थे। तभी जो रेशियो लिया उन्होंने वो नंबर्स का नहीं लिया, किसका लिया? किसका लिया? Wait. वेट। Wait. सर Wait. अब Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो चल, अब एक और चीज, देखो एक पर्टिकुलर मैटर है, एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर मैटर। उस पर्टिकुलर मैटर को मैंने प्रोड्यूस किया एक तरीके से, उसी पर्टिकुलर मैटर को मैंने प्रोड्यूस किया दूसरे तरीके से, तो CaO प्लस वाटर बना। इसी को मैंने तीसरे तरीके से किया कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है, हीट किया, आ गया। इसी को मैंने रेन वाटर से उठाया, इसी को मैंने ओशन से उठाया। सी भी क्यों छोड़ूं, और टैप तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, राइट। उसके बाद ग्लोबल सॉल्ट उठा लिया, ग्लोबल सॉल्ट को हीट किया तो भी वाटर आया। तो Sir, what is- ये जो वाटर आया ना, ये जो Neutralization. मैटर आया ना, ये जो मैटर आया क्या, सर व्हाट इज ग्लोबल सॉल्ट? Na2SO4.10H2 इज ग्लोबल सॉल्ट, नाम है उसका, ग्लोबल सॉल्ट नाम है इसका। सर न्यूट्रलाइजेशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? हाँ ना भाई, क्यों नहीं? ऐसे कैसे, मतलब लो सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, तो वाटर बना ना। जिप्सम सॉल्ट, ए जिप्सम इज योर दिस थिंग, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को भी हीट करोगे तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है, वो POP बनता है, एंड देन वाटर आता है, राइट। तो अभी मेरी बात सुनो, वाटर प्रोड्यूस किया मैंने, ठीक है। जब ये मैटर प्रोड्यूस हुआ ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है ना, उनका रेशियो हमेशा 2:16, मतलब 1:8 रहा। कितना रेशियो रहा? 1:8. तो मैं इसको मिक्सचर बोलूं कि कंपाउंड बोलूं? Compound. सर Compound. कंपाउंड। हर एक अलग अलग, अगर मैं अलग अलग प्रोसेस से एक मैटर बना रहा हूं, ठीक है, अगर ये कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर जो रेशियो ऑफ वेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? Constant. क्या होते हैं? Constant. constant हाँ, कांस्टेंट होते हैं। और मिक्सचर के अंदर रेशियो ऑफ वेट्स कांस्टेंट नहीं होते हैं. नहीं होते. नहीं होते हैं। तो ये मैटर का, अगर मेरे को इस मैटर के अंदर जब वेट रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है एलिमेंट्स का, तो मैं इसको कंपाउंड बोलूं कि मिक्सचर बोलूं? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। Compound. अंडरस्टैंड? Yes, sir. डन। कंपाउंड बोल दिया इसको, डन। इसको हटाओ। Yes, sir. लिख लिया तुम लोगों ने? अब स्टेटमेंट लिखो एक, टू और मोर एलिमेंट, 2 or more elements
two or more elements will combine together. Two or more elements will combine together in a fixed ratio. Two or more elements will combine together in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass, in order to produce a particular compound. This law is law of what? Definite proportions. This law is law of constant or definite proportion. Understood? Yes. This law is law of constant or definite proportion. Chalo. Now, very good. Now drawbacks. Drawbacks of this law. Isotopes. 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 Now, in case of isotopes, right? In case of isotopes, these atoms have different mass, and hence the ratio of weight changes. Example, H2O, D2O, BOD. अच्छा, पहले तो ये बताओ, अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन कैन बी O16 और O18, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं? 12. जिसने कर लिया था वो चुप रहेगा और जो नहीं करा वो करेगा. रिमेनिंग बच्चा पार्टी सॉल्व इट. Okay. Listen. Water HOH बन सकता है. एक काम करते हैं. O16 लेते हैं और मुझे पता है वाटर होता है H2O. बॉन्डिंग वाले देखा जाए ना, मैं ऐसे लिखूंगा वाटर को. क्यों? बिकॉज वाटर जब भी रिएक्ट करता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इस टाइप का कंपाउंड बनाता है. तो H2O ऐसे आता है, तो मैं बीच में ऑक्सीजन रखता हूँ. ठीक है. तो लेट्स से यहाँ पे H आ सकता है, यहाँ पे H आ सकता है, यहाँ पे D आ सकता है, यहाँ पे D आ सकता है. O16 पे यहाँ पे T आ सकता है, यहाँ पे T आ सकता है, यहाँ पे H आ सकता है, H और T आपस में आ सकते हैं, तो HOT, DOT और HT आ गया, DT आ गया और क्या नहीं आया? HD नहीं आया. ठीक है, तो HOD. So tell me how many waters are possible when I am taking oxygen as 16? 6. ऑक्सीजन अगर 16 लिया तो 6, और अगर ऑक्सीजन 18 लिया तो और 6 और, तो कितना आ जाएगा? अब इसके अंदर रेशियो क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2:16, 1:8. इसके अंदर 2 ड्यूटेरियम मतलब 4 ग्राम, 16.
तो कितना आ जाएगा 1:4. 1:4. So how come this ratio will become same? This law become not correct ना, because दोबारा जब वाटर मिल रहा है मेरे को, तो वाटर के अंदर जो रेशियो आ रहा है मास का वो अलग आ रहा है. एग्री? बात समझ में आई? Yes, sir. और उसने बोला था क्या नाम है, जो रेशियो होगा ना हमेशा सिंपल रेशियो होगा. इट ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल रेशियो. अगर सिंपल रेशियो होगा तो C12 H22 O11, अगर मैं इनका मास निकालूं दैट इज 12 × 12 इस टू हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 22 × 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 11 × 16. तो ये किसी भी एंगल से सिंपल रेशियो दिखता है तुम लोगों को? नहीं सर. नहीं ना. तो ये एक और ड्रॉबैक है, दैट रेशियो ऑलवेज नॉट अ सिंपल रेशियो. इसने कर भी लिया, वो भी लिखेगा. ये ड्रॉबैक. सिंगल मतलब नहीं, इट ऑलवेज बेयर अ सिंपल रेशियो. सिंपल, नॉट सिंगल. इट ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल रेशियो, बट इन दिस मॉलिक्यूल इज नॉट बेयरिंग अ सिंपल रेशियो. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने ये भी कहा था कि जो वेट का रेशियो होगा ना वो सिंपल रेशियो होगा. ठीक है, तो ये सिंपल रेशियो लग नहीं रहा है किसी भी एंगल में. तुमको लग रहा है क्या? अरे लग रहा है तुमको? नहीं, sir. नो सर. नहीं ना. अच्छा हटाओ इसको, बोलो. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ए, पीछे से आवाज आई कुछ. Anyone have any doubt in this? No, na? No, This is sir. peaceful concept. Okay. Now listen. इतना सब कुछ कर लिया, तो एक काम और करता है. राइट, लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सर अभी ये पहले वाले से कंटिन्यूशन होगा ना? हाँ ओके सर. हाँ, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, जब दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, एग्जांपल जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास N2O आता है, मेरे पास NO आता है, मेरे पास NO2. N2O3 आता है, मेरे पास NO2 आता है, मेरे पास N2O4 आता है, और मेरे पास N2O5 आता है. गेटिंग इट? तो मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो एक बात बताओ, कितना वेट नाइट्रोजन का रिएक्ट किया? अच्छा एक और चीज सुनो ना. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, इन दोनों को छोड़ के. दे आर न्यूट्रल. N2O and NO, they are neutral oxide. They are neutral oxide. मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, और ये बाकी सारे एसिडिक ऑक्साइड है. और बताइए क्या, along a series एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो एसिडिक कैरेक्टर N2O5 का ज्यादा है, फिर N2O4 का. N2O4 का NO2 जितना ही है. पूछो क्यों? अरे इसका मल्टीपल ही है ना. दो NO2 को लिखोगे तो N2O4 बनेगा ना. अरे हाँ कि ना? Yes sir. Yes, तो sir. एसिडिक कैरेक्टर, हाँ, अगर दो NO2 लिखूं तो क्या बनता है? N2O4 ही बनता है ना. Yes. दोनों चीज सेम चीज ही है, सेम चीज है. तो इतना टेंशन वाली बात नहीं, दोनों का एसिडिक कैरेक्टर सिमिलर होता है. एग्रीड ना? ये बताओ, जब मैंने N2O बनाया तो कितना ग्राम नाइट्रोजन लिया?
28. 14 into 2 that is 28, राइट? तो 28 ग्राम्स लिया. कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ? 16. 16. 16. कितना ग्राम लिया? 14. 16. 16, राइट? कितना ग्राम लिया? 28. 48. 28, 48. 48. कितना लिया? 14. 32. 32. अरे कितना लिया? 28. 64. 64. अरे कितना लिया? 28. 80. 80. एग्री? उसने इस लॉ ने बोला कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, तो मैं ना एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देता हूँ. सपोज नाइट्रोजन है, इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया. अब इसके अंदर नाइट्रोजन का मास क्या है? 28, 14, 28, 14, 28, 28, राइट? तो मैं इसको क्या बना दूं? सबको सेम मास बनाना है, तो क्या बनाऊं? 14 बनाऊं, 28 बनाऊं, तुम्हारे ऊपर है. 28. लंबा काम करवाओगे क्यों? 3 28 है तो 14, राइट? 28 ही कर दे. ओके. हाँ, तो एक काम करते हैं, अगर 14 को मेरे को 28 करना है, तो लेट्स से 14 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 28 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? 32. 32. तो अगर 14 ग्राम 28 14 ग्राम 64. एक मिनट 64. 14 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 28 ग्राम किसके साथ करेगा? 64. एग्री? Yes, तो sir. अगर मैंने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया ना, तो दूसरे एलिमेंट का मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा. तो इसको किससे काटूं? 16. एग्जैक्टली. तो क्या आएगा? 1:2. 1:2:3:4:4:5. You understood that? So the fixed mass of one element will react with variable mass of another element to form multiple compounds. Then the ratio of the weights of that variable mass will always be a simple ratio. Understood? Sir, can you Sir, आप fixed mass. When a fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element, if the fixed mass of one element will react with variable mass of another element in order to form multiple compounds, then the ratio of the variable mass of other elements in these compounds will always bear a simple ratio. Sir, can you repeat this statement? चलो ठीक है. When a fixed mass of one element, तो ये लिखना है कि समझना है? सर लिखना है. हेलो, अच्छा लिखना है ना, तो सारे लिखोगे. When the fixed mass of one element, the fixed mass of one element is reacting with, when the fixed mass of one element is reacting with the variable mass of another element, the fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element in order to form multiple compounds, when the fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element, will react to variable mass of another element in order to form multiple compounds, then the variable mass of another element will always bear a simple ratio in those different compounds. Understood? Variable mass of another element will always bear a simple ratio in those another compounds. Understood?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो चल अब दिस सर आप सारे वो जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं उनके नाम बोलिए ना। ओके इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं ना? हाँ इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। पता है कैसे बनती है? हाँ देखो चुपके से जाना कि हम लैब के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं और डाइल्यूट HNO3 होता है। डाइल्यूट HNO3 की बोतल के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देना और भाग आना लैब से, नाइट्रस गैस बनेगा, दिस लाफिंग गैस, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। कितने नाइट्रोजन है? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। हाँ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड है ना, 2 ऑक्सीजन है। कितने नाइट्रोजन है? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। क्या? टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड। एग्जैक्टली, पेंटॉक्साइड। ओके समझ में आया? Yes, sir. ओके तो अभी हटाओ इसको। Yes. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ड्रॉबैक क्या रहेगा? वही आइसोटोप। क्या रहेगा? Isotopes. या ड्रॉबैक विल बी आइसोटोप ऑब्वियसली, राइट? इधर से हम लोग लॉ ऑफ Multiple proportions. सर इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? आइसोटोप बेटा। ओ हाँ अब एक नाइट्रोजन का भी मास चेंज हुआ तो सारे ऑक्सीजन का रिलेटिव मास चेंज होगा ना, क्योंकि तुमको नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है। अगर ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया तो मास कैसे सेम रहेगा, राइट? सर आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ रुको, फॉर एग्जाम्पल NO ले लो और NO2 ले लो, ठीक है? इसके अंदर O18 ले लो। अब नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, इसके अंदर 16 ग्राम, इसके अंदर 36। तो मुझे बताओ कौन सा सिंपल रेशियो हुआ है? हुआ क्या? और अगर एक और NO2 ले लो नॉर्मल 16 वाला, ये 32, मान लिया 16:1, 1:2 आया। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? मतलब 36/16 आएगा ना? कोई रेशियो आया क्या सिंपल? No, sir. बात समझ में आई? हाँ तो अगर मैंने आइसोटोप गलती से डाल दिया तो इवन इफ द नाइट्रोजन मास इज कांस्टेंट तो द ऑक्सीजन मास विल नॉट बेयर अ सिंपल रेशियो अमंग देमसेल्व्स, बिकॉज उसमें आइसोटोप इंक्लूड हो जाएगा। गेटिंग इट? Sure. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये अजीब ही है। देखो क्या कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, क्या कहता है देखो। हाँ ठीक है, लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या कहते हैं
कार्बन है, ठीक है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास CH4 आता है। CH4 आता है। जब ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास H2O आता है, और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 आता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना मेरे पास 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। मुझे एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो किसका करूं? कार्बन का करूं, हाइड्रोजन का करूं, या फिर ऑक्सीजन का करूं? ऑक्सीजन का कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया 32 ग्राम, कोई दिक्कत? भाई का बताओ, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, तो 32 ग्राम कितने ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 12 ग्राम, ठीक है। वाटर के अंदर जब H2O बनेगा तो ये ऑक्सीजन 32 ग्राम 2 ग्राम कर रहा है 16 ग्राम के साथ, तो 32 ग्राम कितने ग्राम के साथ कर रहा है? 4 ग्राम के साथ कर रहा है, करेक्ट। तो अगर मैंने ऑक्सीजन का 32 ग्राम रखा तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम होगा, ठीक है। When the fixed mass of one element, when the fixed mass of one element is reacting with variable mass of another two elements to form different compounds, then the another two elements, when they react with each other, either they react with the same ratio or a simple multiple of their ratio. जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे या तो फिर इसी रेशियो के साथ करेंगे या उसके सिंपल मल्टीपल के साथ करेंगे। अभी क्या बताओ, मीथेन, जब कार्बन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मीथेन। तो कार्बन कितना होता है मीथेन के अंदर? 1 हाइड्रोजन कितना होगा? 4 हाइड्रोजन कितना होगा? 4 ग्राम। तो रेशियो क्या हुआ? 4:12। रेशियो क्या हो गया? या तो सेम रेशियो में करेंगे या तो उसके सिंपल मल्टीपल में करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगर मैंने 3 एलिमेंट लिए, उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स किया और दोनों एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके 2 कंपाउंड बनाए, नेमली CO2 और H2O। जो मास सेम रखा तो दूसरे एलिमेंट का कोई मास आया होगा। जब ये दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, आइदर वो इसी रेशियो के साथ करेंगे या उसके सिंपल मल्टीपल के साथ करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? Fine. Yes, sir. You just write down this statement first. Write down the statement first. ये सारे बहुत stupid laws हैं, ठीक है, इतने important नहीं है. But anyways, we have to do. When a fixed mass of one element, when a fixed mass of one element is reacting with variable mass of another element, variable mass of another element, in order to form different compounds, then the other two elements when react with each other, will react with each other the other two elements will react with each other, comma, they will do so either Sir, can you repeat? they will do so either Sir, by can the you same repeat ratio. after each other? No, where I was. will do so. Can anyone repeat? See, I don't cram this stuff. I was just making the thing right now. Can And the anyone- two other elements will react with each other. They'll do so either. अच्छा, each other, comma, they will do so either with the same mass ratio
either with the same mass ratio or by its simple multiple of that ratio. Either by same mass ratio or by its simple multiple of that ratio. Understood? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको लिखो, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं, देन वील वाइंड ऑफ. ठीक है? Done, sir. Very सर आप good. This is our update now. इसमें हम लोग क्या क्या क्या? का मास फिक्स कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? तुम लोग किसी का भी मास फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन ले लो और सल्फर ले लो. ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है. ठीक है? तो मुझे बताओ तुम किसका मास फिक्स करना चाहोगे? Sulfur. ऑक्सीजन. सल्फर? Sulfur. पक्का? Yes. चलो Yes, sir. सल्फर का मास फिक्स करते हैं. सल्फर करते हैं. ठीक है बेटा, सल्फर कर दिया. ठीक है, तो सल्फर का मास मैंने फिक्स किया, लेट्स से 32 ग्राम. कोई दिक्कत? No. तो SO2 के अंदर अगर 32 ग्राम ऑफ SO2 के अंदर अगर 32 ग्राम ऑफ सल्फर है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए? 30. 32. ठीक है. किसके अंदर? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अगर कितना ग्राम सल्फर है? 32 into 2, 64. 64 ग्राम सल्फर है तो कितना ग्राम कार्बन होगा? 12. 12 ग्राम. तो अगर 32 फिक्स किया तुमने तो 32 ग्राम के साथ कितना ग्राम कार्बन होगा? 6. 6. तो ये और ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन? कार्बन और ऑक्सीजन. नाउ व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अभी जो रेशियो आया तुम्हारा वेट का वो कितना आया? एक चलो रब दिस पार्ट CH4 वाला. Yes. Yes, sir. यस सर. हाँ, अब मेरी बात सुनो. आओ. हाँ, कार्बन आया 6 ग्राम, सल्फर आया 32 ग्राम. तो रेशियो कितना आया कार्बन और सल्फर का? 6:32. राइट? कोई डाउट? No. नो. वेरी गुड. तो रेशियो आया कार्बन सल्फर का 6:32. एक बार बताओ, जब कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, CH2 बनेगा, तो कितना ग्राम सल्फर है? 64. वेरी गुड. कितने ग्राम कार्बन के साथ? 12. अच्छा, तो 32 ग्राम कितने ग्राम के साथ करेगा? 6. तो रेशियो क्या सेम है कि अलग? सेम ही रेशियो है ना? Yes. या तो सेम रेशियो हो गया तो सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो होगा, इसी रेशियो का. तो Yes. सही है ना? कोई दिक्कत? No, sir. नो लॉ सर. ऑफ क्या हो गया? व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ Reciprocal proportion. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. बात समझ में आई? Yes. डन. Sir, it does not have any drawback. आइसोटोप Isotope. सही रहेंगे ना? हाँ, Okay. Yeah. वो तो हमेशा ही रहेंगे ना. ओमनी प्रेजेंट एवरी टाइम. Okay. Yes, sir. या ऐसे. चलो, we'll finish that thing now. You take care, right? And enjoy सर ये जो बैच बनाया है enjoy सर your day. सर हेलो, क्या बोला? ये जो बैच बनाया है सर, ये दिस इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स और इवन फॉर अप्रैल स्टूडेंट्स सर? It's combined. Now it's combined. Everything will be same. Your Everything will be curriculum same, and their no, sir. curriculum will be same. Yeah. ओके सर. ठीक है. So there will be no difference. Bye, beta.
सर और एक और डाउट था, हम लोग को अभी प्रैक्टिस सपोज करना है और पढ़ना है तो कहाँ से करें? अब ये कौन से हैं? ये नया वाला है ना? सर नया वाला नहीं, अटेंड किया है आपने जो स्टार्टिंग से किया था वो अरे attend किया। एटॉमिक अप्रैल बैच है कि अप्रैल है कि मई है? मई बैच ही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो सारी लिस्ट तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। जहाँ से पढ़ना है मैं तुमको मटेरियल भी भेजता हूँ, ठीक है? स्टॉक का भी भेजता हूँ नीलेश सर के यहाँ से, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे आज ग्रुप के अंदर, ठीक है? ओके सर। और सर, कुछ? हाँ तो इसमें डाउट था, आपने पहले वाले इसमें CHO हाँ आपने ऑक्सीजन का मास फिक्स किया एंड देन CO2 H2O में जितना C का मास था, जितना H का मास था, उनका रेशियो लेके CH4 का निकाला था। नहीं नहीं, मैंने कहा जब ये बनाते हैं तो CH4 बनाते हैं, ठीक है? उस CH4 में रेशियो 12:4 है, सेम रेशियो मेरे को यहाँ मिल रही है। या तो वो सेम रेशियो से रिएक्ट करेंगे या तो उसके सिंपल मल्टीपल से रिएक्ट करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो मैंने CH4 के ये अंदर यहाँ से रेशियो नहीं लिया, मैंने CH4 का रेशियो इसके साथ कंपेयर किया, उल्टा काम किया, ओके सर, ठीक है? तो इनका काम क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए लगाए ये लॉस, कहता हूँ कुछ भी नहीं है। These are the most stupid laws, but that time it was very important because किसी को कुछ पता नहीं था, मास के साथ खेल रहे थे, तो हमेशा 12 ग्राम रिएक्ट करते थे, 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता था CO2 बनाने के लिए, तो बहुत खुश होकर तालियां बजाते, चलो ठीक है सब कुछ सही है, गेटिंग इट? तो बहुत पुराने लॉज हैं ये, गेटिंग इट? सर तो हेलो, उस वाले में हाँ क्या कहते हैं, क्या हमने कहते हैं? सल्फर का ये हाँ सल्फर का मास हमने फिक्स किया था, तो कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन वाले का 3:8 और 3:16 आता है। 3:8 और 3:16 आता है, कैसा? तो वहाँ पे ना ऐसे सल्फर के बदले ओर लिखना था 6:32 के अंदर। हाँ तो कोई बात नहीं, सिंपल मल्टीपल ही आएगा ना उसका भी, हाँ 2 हाँ से वही। मल्टीपल हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? अंडरस्टूड? ओके सर। Yes, sir. चलो, डन, Yes, sir. यस सर। चलो टेक केयर, बाय। Bye. थैंक यू सर। Thank you. Yeah. Bye.